Everyone. So today I will continue my linear programming problem, statement problem. So I'll show you one more example. तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा. एंड दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. इससे पहले मैंने आप लोगों को डाइट और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम दिखाया था. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. The transportation problem is a bit different from what you have learned in your diet and manufacturing problem. उससे थोड़ा अलग है. तो ये कैसे करना है? And this is very simple actually. You need not to think a lot of this equation बनाते समय. The process of making equation is easy in this type of question. So I'll show you. First, let me dictate the question for you. There are two factories located, one at place P and other at place Q. From these locations, a certain commodities is to be delivered to each of the three depots situated at A, B and C. What does it mean? That means there is a factory P, there is another factory Q. And there are three depots. One is at A, another is at B, and the third one is at C. And a certain commodity means these two are factories. ये दोनों फैक्ट्री है. यहां से कुछ चीज ये तीन डिपो में भेजना है. फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर. ये रेफ्रिजरेटर बनाने वाला फैक्ट्रीज है और ये उसका शोरूम है. तो ये शोरूम में भेजना है. तो उन्होंने कहा है कि दिस थ्री डिपोट्स द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट्स आर रेस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4 यूनिट्स. तो इसको हर वीक, एवरी वीक इट रिक्वायर्स 5 यूनिट्स. दिस रिक्वायर्स 5 यूनिट्स. दिस इज रिक्वायर्ड 4 यूनिट्स. ये हमें बताया गया. While the production capacities of P and Q are 8 and 6 units. मतलब इनका जो प्रोडक्शन है, ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा. So production is 8 units and 6 units. तो 8 plus 6 is 14 and 5 plus 5 plus 4 is 14. मतलब जितना प्रोडक्शन है वो सबका सब will be sent to these depots. The cost of transportation per unit is given below. So cost of transportation मतलब अगर if P is sent to A, तो in for one commodity it requires 160 rupees. ये सब रुपीज में है. तो P से A के लिए 160 रुपीज, P से B के लिए 100 रुपीज, P से C के लिए 150, Q से A के लिए. So these different type of possibilities में कितना कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन. इट इज गिवन इन दिस टेबल. सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोट इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम. दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम मतलब कौन से फैक्ट्री से किस डिपोट में कितना यूनिट भेजने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मिनिमम. तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा, कितना यूनिट भेजने से, एंड व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो यू हैव टू डू इट बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. सो फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हाट यू हैव टू डू, you have to make this linear constants. So let x units are sent from P to A. मतलब P से A तक x यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किया and y units are sent from P to B.
नहीं ऐसे लिखना ही ठीक है. So y units. So whenever transportation problem is given, you take x and y in this manner. In all questions, transportation problem में हमेशा हम लोग ऐसे लेंगे. Now, some units are sent from P to C. तो P से C तक कितना यूनिट्स भेजना है? Its total capacity is 8 units. X is given to A, Y is given to B. X यूनिट्स A को मिल गया, Y यूनिट्स B को मिला, तो इसके पास में कितना बचा? How many are left from P? That will be 8 minus X plus Y. X plus Y is sent to these two. Whatever is left, total was 8. तो टोटल 8 था, 8 में से बाकी जो बचा वो इसको C को दिया. It's a very simple. Similarly, Q to A, how many units are sent from Q to A? Now you think in this manner that this A requires 5 units. A के पास A को चाहिए हमको 5 units. And now already X units A has got. A को X units already मिल चुका है. How many more A requires? That will be 5 minus X. Q to B. Already Y, B has received Y from P. तो Y तो already P से B में आ चुका है. So इसको और कितना चाहिए? इसको चाहिए था 5. So that will be 5 minus Y. और इसका 4 यूनिट्स चाहिए था, ऑलरेडी मिला 8 माइनस एक्स प्लस वाई. सो दैट विल बी 4 माइनस 8 माइनस एक्स प्लस वाई. सो यू कैन सिंप्लीफाई, उसका एड सब्ट्रैक्ट जो भी है करना है, तो x प्लस वाई माइनस 4. नाउ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर so linear constant. While writing this one, what you have to do? You have to give every जितना भी यूनिट ट्रांसपोर्ट किया ना, फ्रॉम ईच टू ईच, दैट शुड बी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज यूनिट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो यहां से यहां जो यूनिट है वो पॉजिटिव है. तो यहां से यहां तक कितना है? x यूनिट. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. P to B is y units. Y greater than equal to 0. P to C is 8 minus x plus y. 8 minus x plus y greater than equal to 0. And that can be written as x plus y less than equal to 8. Similarly, 5 minus x should be positive. मतलब ये जितना भी ट्रांसफर हुआ, everything you make greater than equal to 0. Linear constant is very easy. सबको greater than equal to 0 लिखना है. तो ये होगा 5 minus x greater than equal to 0. That gives you x less than equal to 5. Then 5 minus y greater than equal to 0 gives you y less than equal to 5. And x plus y minus 4 greater than equal to 0 gives you x plus y minus greater than equal to 4. So these are the linear constant. ये linear constant है, ये linear constant है, ये linear constant है, ये linear constant है, ये linear constant है. Now there should be a objective function. The objective function how will decide?
it is always given in the last of the question. How many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum? तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए. So transportation from P to A. So P to A कितना रुपीस? 160. यहां पे मैं लिख रहा हूं 160. P to B 100. P to C 150. Q to A 100. Q to B 120. And Q to C is 100. Now, objective function. Minimize transportation cost C. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैंने C से डिनोट किया, तो दैट विल बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा टोटल? P to A X unit, or 1 unit, for 1 unit we require 160 rupees. That means it will be 160x plus 100 rupees per unit, और यहां y यूनिट किया तो 100y plus 150 into this 150 into 8 minus x plus y plus 100 into 5 minus x plus 120 into 5 minus y plus 100 into x plus y minus 4. So there are so many x and y, so it's better you open up and add everything. So if you add, I am going to write the result directly. I am not going to use, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. So after doing plus, minus and everything, 10x minus 7y plus 190. So these are the linear constant and this is your objective function. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. अब क्या करना है हमको? अब हमको से ग्राफ बनाना है. सो आई एम मेकिंग दिस ग्राफ. So x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, if it is there, all shading will be in the first quadrant. And in every question of linear programming problem, ये हमेशा होगा ही. That means every time we have to shade the first quadrant. अच्छा. Next, x plus y less than equal to 8. So, x plus y less than equal to 8. अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, बाउंड्री लाइन होगा x plus y. Anything is there, you replace it by equal sign. यहां पे जो भी इनइक्वलिटी होगा उसको इक्वल साइन से रिप्लेस करिए. मैं इसके लिए बना रहा हूं. Now it will be, may bring this 8 to this side, x by 8 plus y by 8 equal to 1. So this is your x intercept, this is your y intercept. Straight line का जो intercept form था. That means here it is, if it is 8, so this is 8, and here somewhere it is 8. So this is your
ये, एंड दिस इज डन. नाउ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8. तो ये 8 से छोटा है. सो टेक एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, कोई भी एक पॉइंट हो, से origin. So take origin. So that will be 0, 0. इस origin का कोऑर्डिनेट है 0, 0. So x की जगह 0, y की जगह 0. So 0 plus 0 less than equal to 8. तो 0 less than equal to 8. अगर ये true है, then you have to shade towards that point. मतलब इस लाइन से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बिठा के अगर मेरे को ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, देन आई हैव टू शेड दिस साइड. रिमेंबर इन दिस मैनर, बट डोंट शेड इट नाउ बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ इनइक्वलिटीज. बहुत सारे इनइक्वलिटीज होगा. x लेस देन इक्वल टू 5. x लेस देन इक्वल टू 5. So boundary line is x equal to 5. So it's a line parallel to y axis. This is a line parallel to y axis. If it is 8, it will be somewhere here. You write this equation also. X plus y equal to 8. Then for this y less than equal to 5. So this is a line parallel to x axis. Boundary line is y equal to 5. Now next is x plus y greater than equal to 4. So for this part, x plus y greater than equal to 4. So boundary line x plus y equal to 4, और इसको अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये ऐसा होगा. सो इट्स x इंटरसेप्ट इज 4, y इंटरसेप्ट इज 4. ये अगर 8 हुआ तो समवेयर है 4, 4. एंड किस तरफ शेडिंग होगा वो मेरे को चेक करना है. तो मैंने सिर्फ इसका शेडिंग चेक किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 8. इस वाले का चेक करता हूं मैं. ये क्या लिखा है, y लेस देन इक्वल टू 5. ये लाइन है दिस वन. इस लाइन से आइदर अबव और बिलो इट इज लेस देन 5. सो y कोऑर्डिनेट इज लेस देन 5. सो इस लाइन से किस तरफ y कोऑर्डिनेट लेस देन 5 होगा, बिलो. So it's shading this side. Similarly, x equal to 5. ये यहां से आया x less than equal to 5. इस लाइन से इस साइड में या इस साइड में मेरे को शेडिंग करना है, एनी वन साइड, कोई भी एक साइड में. x less than 5, तो यहां से x कोऑर्डिनेट less than 5 किस तरफ होगा, दिस साइड. सो दिस विल बी शेडिंग दिस साइड. और इसके लिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, लाइन है दिस इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो ये मेरा हो गया पॉइंट 0,0. तो 0,0 इस पॉइंट के x और y में x कोऑर्डिनेट के जगह 0, y कोऑर्डिनेट की जगह 0 बिठाया. तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स. मतलब अब इस लाइन से आइदर मेरे को यहां शेड करना है और नहीं तो ऐसा शेड करना है. तो अगर मेरे को यहां शेड में तभी रहूंगा अगर मेरे को ये पॉइंट मैंने बिठाया और मुझे फॉल्स मिला. दैट मीन्स मेरा जो शेडिंग एरिया है उसमें ये पॉइंट नहीं है. दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन माय शेडिंग एरिया. तो मेरा शेड किस तरफ होगा, दिस साइड. सो दिस शेडिंग विल बी दिस साइड.
So you will find that this is your shading area, common shading area सभी का. इसके इस तरफ होगा, इसके इस तरफ होगा. That means this part will be shading. और x greater than equal to 0, y greater than, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगा. बाकी इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ. That means this will be the shading area. Because this is made by, मैंने ये ग्राफ पेपर में नहीं बनाया, so these coordinates you may not get the correct one. अब मुझे क्या करना है, this ये so this 6 coordinates का मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है. तो कैसे निकालें? So it should be from graph, but say this point y equal to 5, तो इसका मतलब तो ये तो 0,5 है. सिमिलरली ये हो गया मेरा 5,0, बिकॉज इस लाइन में x 5 है और ये x एक्सिस में है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, ये कोऑर्डिनेट मेरा 4 है, 4,0. ये कोऑर्डिनेट है मेरा 0,4, क्योंकि ये मैंने 4 से पास किया था. ठीक, वैसे ये 8 है, ये 8 है. अब ये दो पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है. तो ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए द बेस्ट वे, ये पॉइंट कौन से पॉइंट लाइन का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का. So solve these two equation. मैं इक्वेशन सॉल्व करो. So x plus y equal to 8 and y equal to 5. ये सॉल्व करने से मेरे को क्या मिलेगा, x equal to 3. y यहां 5 बिठाया, x का वैल्यू 3 मिला, so 3,5. तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,5. और उसके बाद में और कौन सा पॉइंट का चाहिए, ये वाला पॉइंट का. ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका और इसका. तो ये मेरा हो गया, इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है. इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, तो x यहां 5 बिठाया तो y 3 मिला, तो x 5 y 3. So vertices of feasible region. Feasible region is always the shaded part. वो जो shaded part है उसको हम लोग feasible region बोलते हैं. तो उसका जो vertex है, corner points है, उसके सारे के coordinates लिखने हैं. तो क्या कह रहे हैं, 0, 5, 3,5, 0, 5, 3,5, then 5,3, 5,0, 4,0 and 0,4. उसके बाद में क्या करना है, मेक ए टेबल. Vertices of feasible region. और यहां पे ऑलवेज यू राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस वन, c इक्वल टू 10x माइनस 7y प्लस, अच्छा ये प्लस 190 होगा, प्लस होगा ये प्लस 190. उसके बाद में ये जो है, यू राइट दिस वन 0, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 0, 4, 0, 0, 4. और ये x यहां 0, y 5 बिठा के c का वैल्यू यहां निकालना है. So x 0 बिठाया, 5 बिठाया, -35,
-35 यहां से चला गया तो 155 एंड 10 1550 x0 y5 वैसे सभी के लिए हमको वैल्यू उठाना है एंड योर वैल्यू कम्स एज 3,5 के लिए होगा 1580 5,3 के लिए होगा 1740 5,0 के लिए होगा 1950 4,0 के लिए होगा 1940 एंड 0,4 के लिए होगा 1620। उसके बाद में व्हाट यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर था मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है, तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सी का वैल्यू जो मिनिमम होगा वो ढूंढना है एंड दिस योर मिनिमम। तो ये मिनिमम कब है 0,5। सो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is rupees 1550 and when minimum ट्रांसपोर्टेशन कब मिला, when x is 0 y is 5 and y equal to 5। तो ये था आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया सॉल्यूशन। ये जो ग्राफ बनाया है इट इज वेरी वेरी सिमिलर व्हाट यू हैव लर्न इन योर लीनियर इनइक्वालिटीज लास्ट ईयर, कैसे ग्राफ करना है, कैसे शेड करना है, दैट इज नथिंग इज डिफरेंट। सिर्फ इसमें ये प्रोसेस डिफरेंट है, जो कॉर्नर पॉइंट्स जो शेडेड पार्ट होगा उसका कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये कोऑर्डिनेट मैंने सॉल्व करके जो निकाला है दैट शुड बी, अगर ये 5,3 है तो ग्राफ पेपर में वो 5,3 पॉइंट में ही होना पड़ेगा। इनकेस अगर वो 5,3 पॉइंट में नहीं हुआ लेकिन तुम लोग लिख रहे हो 5,3, देन योर ग्राफ विल बी रॉन्ग एंड योर सॉल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, तो रॉन्ग ही लिखा जाएगा। सो बी श्योर कि आपको कैलकुलेशन करके, जैसे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने ये पॉइंट निकाला, इफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट by doing calculation, so while making graph this point will be exactly at the same position in graph paper, तो वो पॉइंट भी वहीं पे होना चाहिए। so that you should make sure, otherwise आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि आप हमेशा ये आपका ये जो है ये करने के बाद में ही, ग्राफ में दिखाने के बाद में कैलकुलेशन करने से जो आंसर होगा वही करेक्ट होगा। ग्राफ में वो करेक्ट दिखना चाहिए। देन आई विल डिस्कस ऑन वन मोर क्वेश्चन, जस्ट आई विल डिस्कस हाउ टू मेक द इक्वेशन ऑफ दैट वन, देन आई विल फिनिश माय वीडियो टुडे एंड आई विल फिनिश दिस चैप्टर। सो वन मोर क्वेश्चन आई विल डिस्कस। A factory manufactures two types of screws A and B. This is your question number 5 of exercise 12.2. तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मैं अभी ये नहीं लिखूंगा। सो ये स्क्रीन में है, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन। आई एम रीडिंग। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज A and B. Each type of screw requires the use of two machines, an automatic and hand operated. It takes 4 minutes on an automatic and 6 minutes on hand operated machines to manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screws B. Each machine is available for at the most 4 hours on a day.
The manufacturer can sell a package of screws A at a profit of rupees 1 and screws B at a profit of rupees 10. Assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produces in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit. तो इस पूरे क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या सुना? वन इज स्क्रू ए, स्क्रू बी, automatic and hand operated. Machine and hand operated machine. तो मैंने कहा था कि इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर, आपको ध्यान रखना होगा किसी का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका 6th लाइन में. ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर और एट द मोस्ट 4 hours ऑन ए डे. ईच मशीन, कौन सा मशीन? ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड. सो मैक्सिमम टाइम एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम. So maximum time for automatic machine is equal to 4 hours and maximum time for hand operated machine is 4 hours. Now जिसका मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है दैट यू हैव नॉट टू कंसीडर. जो बच गया बिकॉज स्क्रू ए एंड स्क्रू बी दैट शुड बी एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई जब हम लोग लेंगे इट इज ऑलवेज क्वांटिटी. ये क्वांटिटी होता है. तो ये पैकेज इसमें आप देख रहे हैं ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 मशीन. सो पैकेज ऑफ स्क्रू ए क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहीं पे या लास्ट क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री. हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है. इसका मतलब पैकेजेस को एक्स एंड वाई लेना है. सो लेट एक्स पैकेज ऑफ स्क्रू ए एंड वाई पैकेजेस ऑफ स्क्रू बी are made. X packages of screw A and screw B. उसके बाद क्या करना है? You have to make a table to write the summary. तो ये कैसे लेना है हम लोगों को? ऑलवेज एक्स एंड वाई जो लिया हुआ है उसके हिसाब से. सो स्क्रू ए एक्स पैकेट्स, स्क्रू बी वाई पैकेट. तो हमेशा ऐसे बनाना है. ये मैंने कल के वीडियो में दिखाया था लेक्चर 1 में, तो आप लोग देख लेना उसमें. और यहां पे लिखना है हमको वही ऑटोमेटिक मशीन एंड हैंड ऑपरेटेड. तो यहां पे मैंने दे दिया ऑटोमेटिक हैंड ऑपरेटेड. तो यहां पे बोला है ये आपका सेकेंड लाइन में इट टेक्स 4 minutes ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 units ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए. तो स्क्रू ए के लिए बोला है कितना? 4 minutes ऑन ऑटोमेटिक. तो एवरीथिंग इज इन मिनट, तो इट्स बेटर इसको आप मिनट्स में चेंज कर लो. सो दैट विल बी 4 into 60, 240 minutes. And that is also 240 minutes. तो 4 minutes इसमें and 6 minutes here. For screw B,
6 and 3. 6 minutes, 3 minutes. And one more thing is given, that is profit. प्रॉफिट इज स्क्रू ए का है ₹7 और इसका है ₹10. सो ₹7 पर पैकेट. ये है ₹10 पर पैकेट. So after writing the summary, now you can make, क्या बना सकते हैं आप, लीनियर कांस्टेंट. So I can write linear constants are so first you write x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. You write in every question. ये सभी क्वेश्चन में लिखना ही है. एंड ये मैंने आपको कल भी बताया था. नाउ आपको जो इक्वेशन बनाना है जिसका मैक्सिमम मिनिमम टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है. दैट मीन्स वन इक्वेशन इज फॉर ऑटोमेटिक, another for hand operated. एक ऑटोमेटिक के लिए, एक हैंड ऑपरेटेड के लिए. सो ऑटोमेटिक का क्या है, 4 और 6 मिनट्स है. तो इसका x यूनिट है, x पैकेट है, तो इसमें कितना टाइम चाहिए होगा, 4x. इसमें कितना, 6y. सो ऑटोमेटिक का है 4x plus 6y टोटल टाइम. मैक्सिमम इज 240. दैट मीन्स इसका वैल्यू 240 से कम या इक्वल हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 240. इफ यू वांट, आप इसको सभी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू 120. दैट डिपेंड्स ऑन यू. नाउ अनदर इज हैंड ऑपरेटेड. तो ये 6x plus 3y, 6x plus 3y लेस देन इक्वल टू 240. तो इसको आप लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो दैट विल बी 2x plus y लेस देन इक्वल टू 80. तो ये लीनियर कांस्टेंट इज दिस वन एंड दिस वन. इससे आपको ग्राफ बनाना है. एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहां होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो वहां लास्ट में लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट. तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है. तो मैं लिखूंगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट P इक्वल टू, तो प्रॉफिट इसमें है ₹7 पर पैकेट. तो यहां x पैकेट है, तो ये हो गया 7x प्लस 10y. और बाकी ग्राफ बना के करने वाला प्रोसेस आई थिंक ऑल ऑफ यू नो. एंड मेकिंग दिस टेबल एंड राइटिंग ऑल दिस थिंग मेक्स दिस पार्ट इजी. मतलब आपको फिर दोबारा क्वेश्चन से वैल्यू पिक करना नहीं पड़ेगा. And there will be less chance of mistake. So be careful. If you can write in this manner, this question becomes easy. तो ये manufacturing problem था. I have shown you one more manufacturing problem. And with this, I am finishing my today's video as well as linear programming problem. So if you have any doubt, you can send me your questions to me. I will show if possible in my next video. So thank you very much.